होते हैं, जैसे ये एक अच्छा इंसान आज बन के आया है, ठीक है, जब स्टार्ट करना है तो बोलना है यस स्टार्ट। Sorry, he is saying she is not speaking. Come on. Again. My name is Kushal Agarwal. I'm from Mathematics and Computing branch. So the major problem currently जो हम सभी बच्चे फेस करते हैं वो है academics और skills के struggle का, कि मतलब हम टाइम डिवोट नहीं कर पाते। अगर हम अकेडमिक्स के लिए टाइम डिवोट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं स्किल्स में लैग करते हैं। अगर हम अकेडमिक्स में टाइम डिवोट अगर हम स्टडी कर रहे हैं सब्जेक्ट्स के लिए CGPA के लिए, तो कहीं ना कहीं हम कोडिंग पे इतना ध्यान नहीं दे पाते, और फिर ऊपर से बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं अगर कुछ कॉन्टेस्ट में मतलब उनकी रैंक्स कम आ जाती हैं, और फिर मार्केट कंडीशंस भी बहुत ख़राब है इसमें कि कंपनी हायर ही बहुत कम करती है, और वो उनको CGPA भी बहुत अच्छी चाहिए, स्किल्स भी बहुत अच्छी चाहिए, और तो इसलिए काफ़ी डिमोटिवेशन होती है। तो प्रेशर इज देयर, यू मीन टू से। तो फॉर you guys pressure is only the thing, or some other problems which you are finding in the campus, surroundings with friends? कैंपस में एनवायरनमेंट नहीं है बिल्कुल, क्योंकि सबको पता है क्लासरूम में कोई नहीं पढ़ता। अच्छा, क्लासरूम में कोई नहीं पढ़ता। प्रोफेसर्स प्लीज मार्क इट ऑन, क्लासरूम में कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि क्लासरूम में नहीं होती पढ़ाई मैम। एक तरह से अगर वही मतलब क्लास के बाहर ऐसे आकर के पढ़े तो पढ़ाई होती है? नहीं मैम, मतलब ऐसा नहीं होता। मगर वही टाइम मतलब थोड़ी स्किल्स में डिवोट करें, या फिर एकेडमिक्स में हम जैसे सबको हम एक हफ्ते पहले पढ़ता है एग्जाम से पहले। ओके, अगर वही टाइम थोड़ी स्किल्स में लगाएं, कोडिंग वोडिंग है, तो फिर भी अच्छा रिजल्ट हो सकता है और CGPA भी इम्प्रूव हो सकती है। यहाँ आके टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अच्छा, मीन्स यू वांट टू से दैट इफ यू विल गेट द टाइम, आपको टाइम दिया जाए और आपको प्रेशराइज नहीं किया जाए कि आप कॉलेज आइए अटेंडेंस के लिए, तो आप पर्सनली ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, बेटर परफॉर्म कर पाएंगे बिफोर द मिड टर्म एग्जामिनेशन। What's your name? Sudiksha. Sudiksha, you are the student of third year, Yes, right? ma'am. So what do you feel that what problem youngsters, especially the girl, are facing in the campus? Ma'am, I think the issue that youngsters face is majorly the parental pressure that we have. So it looks like parents always forcing us to study more, to get even a better CGPA, or to get a good job and always progress in that. It's difficult for us to then manage the personal lives in terms of how do we want to manage our mental health, how do we want to manage the societal pressure as well that we have to especially girls when you talk about, in terms of how we have similar restrictions that we can't go outside after this specific time, we have curfew, etc. We are expected to behave in a certain way. I think these are the kind of problems that girls face, and because of the parental pressure as well. Parental pressure is more than the education pressure? Yes, ma'am, it's kind of linked, because parents also expect that you need to have a good education, you need to always progress in that, and if you don't, they probably go ahead and cancel out on the co-curriculars that you do, or they limit your interaction outside because you're not studying. So these are the kind of things that are linked together which cause issues in our lives. Okay, so the parents' pressure is a major problem, especially for the girls. The wonderful weather where we have students, my dear all students. तो आज हम जो बात कर रहे हैं बच्चों से वो ये कि उनको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम आज की यंग जनरेशन फेस कर रही है, और उनकी पर्सनल प्रॉब्लम जो है वो कम से कम 100 लोगों की प्रॉब्लम तो होगी ही। I'm Sushant, third year in physics. I believe the main problems I face in this campus, and these are not just my problems. I am the CR of my class, and these are the problems of most of my classmates, and by extension other people also. Two major problems. First is the 75% attendance rule, and second is that we can't bring our vehicles inside. We have to park them outside, so we have to walk a lot. We have such a beautiful campus, you know. If they allow our scooters inside, you can just ride and you can have fun, enjoy the wind. How many students are there in the campus? I think 10 to 12,000. Okay, and that 10 to 12,000 student, if they are bringing their scooty, what will happen? But that is not the case. All 12,000 do not bring their vehicles. A lot of them live in the hostel, so they are fine. Okay, but 50% are coming from their own houses, isn't it? Yeah, they are, but all come from metro. Only a few of them have their own vehicle.
problem. So rules are for the welfare of the student, isn't it? Yeah, but I don't see any better of student happening. It was better before when we were allowed without rules. Okay. And also the attendance rule. Since we have a lot of alternatives these days, so if I Mhm. want to study something online, I should be able to. I'm not saying that the professors are bad, but if I have an option, I should be allowed to choose that. If I want to study online at my own time, so there should not be any attendance rule where I can focus on things also. Just That's it. There is no other problem you find in your life that you have the problem related to the campus, that attendance is a major problem. yes. Because if that is solved, I'll have a lot of extra time, and time is money. So as my friend said, that money is also very important. Money actually brings a lot of freedom, a lot of free Uh-huh. choices. So if I have time, I can make more money, then I can have more freedom. So I guess it all boils down to attendance. Okay, fine. Thank you, Sushant. As we talk to this student, what's your name? Harry. Harry. Harry, tell me, in the campus, what do you feel? आपको क्या लगता है कि ये कैंपस किस लिए आपके लिए अच्छा है और बाकी स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है? Like, is there any problems of youngsters which you face or the youngsters are facing? In the campus as such, there are no problems. There is nothing to be problematic about in the campus. Okay, and the External personal life? Personal life, the major problems that teenagers or youngsters face is caused by one root problem, that is lack of money. Okay. That's it. That's it. I mean, no other problems are there. Every other problem can be linked back to lack of money. If you have ample amount of money, you don't even need to study. So there are exactly no problems that are not linked back to lack of money. Okay, so you mean to say the youngsters are thinking today's generation is thinking only money is criteria to be happy? Yes. We live in a very capitalistic world right now. So yes. Everyone, how many you feel like that? Okay, great. So according to the student, Harry is saying कि money is everything in this world. Okay, It fine. is time right now. Okay, thank you. Hi, I'm here, Dr. Rachna. My students, ये हैं मेरे प्यारे बच्चे जो आज बताएंगे कि इनका जो एग्ज़ाम प्रेशर है, जो आज की डेट में जब हमारे कॉलेज में एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, प्रायोरिटीज़ क्या होती है एग्ज़ाम्स। तो जब इनसे पूछा जा रहा है कि एग्ज़ाम क्या आपको एक फियर की तरह दिख रहा है, तो ये आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम एग्जैक्टली है क्या और किस तरह से ये इम्पैक्ट करता है हमारे फ्यूचर लाइफ में। नाम बताइए। Hello everyone, my name is Nikhil from third year EC department and एग्ज़ाम प्रेशर तो जब भी एग्ज़ाम आता है एग्ज़ाम प्रेशर आता ही है, बट वी हैव टू इंश्योर कि हम थोड़ा पहले एग्ज़ाम के लिए पढ़ना शुरू करें एंड ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा CGPA स्कोर कर पाएँ जो कि हमारे एकेडमिक्स के लिए भी अच्छा हो। बट एग्ज़ाम को एक फेयर की तरह ही देखा जाता है इंजीनियरिंग में तो, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने को, बट एग्ज़ाम के लिए सब फिर भी एंड मोमेंट पे ही पढ़ रहे होते हैं। सो इट फील्स लाइक कि हमको बहुत कुछ कवर करना होता है उन एक दो रातों में, क्योंकि नेक्स्ट डे एग्जाम होता है। सो इट फील्स लाइक कि प्रेशर तो है, बहुत सारी चीज़ें करनी है बट टाइम लिमिटेड है। सो इट फील्स लाइक अ प्रेशर एंड बहुत बच्चों को ये भी फील होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली काम नहीं आने वाला है हमारी नेक्स्ट जो भी हमारी कॉर्पोरेट लाइफ होने वाली है या फिर जो प्रोफेशनल लाइफ होने वाली है, जिस वजह से बहुत सारे बच्चे एकेडमिक्स को सीरियसली लेते नहीं है और एक दो दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दैट्स वाई वो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट होल सिलेबस इन वन डे बिफोर। सो आई थिंक हमको थोड़ा बहुत शायद एकेडमिक्स को सीरियस लेना चाहिए बिकॉज एट द एंड वही डिसाइड करेगा कि हमारी जॉब भी कैसे लगने वाली है अगर हम ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स की बात करें तो। सो आई थिंक हाँ, थोड़ा बहुत सीरियस लेना चाहिए हमको एकेडमिक्स को भी, बट एट द सेम टाइम साइड बाय साइड अपनी चीज़ों को भी मैनेज करना चाहिए। घबराए हुए हैं एग्जाम को लेके? यस मैम, बिकॉज मेरी खुद की CGPA कम चल रही है एंड उसका रीज़न यही है कि हम प्रायर पढ़ना शुरू नहीं करते हैं जब तक एकदम एंड मोमेंट नहीं आ जाता है। और मैं कोर ब्रांच से हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो मुझे ज़्यादा फील होता है कि मेरे पे ज़्यादा एग्जाम प्रेशर है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस। सो आई थिंक यस, एग्जाम फेयर तो बहुत ज़्यादा है। यंगस्टर्स की प्रॉब्लम्स के बारे में हम यूजुअली बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये यंगस्टर्स की मेन प्रॉब्लम है एग्जाम फियर? मैम एग्जाम फियर से ज़्यादा मैं कहूँगा कि एग्जाम फियर के एग्जाम के कॉन्सिक्वेंसेज जो हो सकते हैं वो ज़्यादा एक फियर है बच्चों के अंदर। एग्जाम अच्छा नहीं गया तो ऑब्वियसली जो अपकमिंग लाइफ है वो शायद अच्छी नहीं होगी अगर वो डिपेंडेंट है अपने कॉलेजेस पर।
तो इस वजह से हमें एग्जाम प्रेशर बहुत ज़्यादा फील होता है। इस वजह से हमें सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं और एग्जाम भी मेंटेन करना पड़ता है। कॉलेजेस पे क्यों डिपेंडेंट होना, बाहर भी जॉब्स मिल जाती हैं। मैम अब तो टॉप IITs में भी जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो बच्चे बाहर तो नहीं, उसके हमारे बाद यहाँ का जाएंगे। इस बार का प्लेसमेंट अच्छा रहा है। हम एज वी नो कि IT सेक्टर इज हिटिंग, तो बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, सो स्टिल बच्चे डिपेंडेंट हैं। बट मैं तो कहूँगा कि आप कहीं पे भी डिपेंडेंट हो, पर अकेडमिक्स को भी थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। बट अगेन वो एग्जाम प्रेशर रहेगा ही, बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडिंग, दैट्स द स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडिंग, तो क्यों आ रहे हैं वो कॉलेज? मैम। क्लासेस तो प्रॉपर हो रही हैं, हो रही है। हाँ, तो फिर क्यों आते हैं? अगर क्लासेस हो रही हैं तो सिर्फ मस्ती करने। मैम एट द एंड जो सबको वेट दिख रहा होता है, सब उसी के लिए काम कर रहे होते हैं। इफ आई टॉक अबाउट कॉर्पोरेट लाइफ, 30 दिन लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि 31st डे पे सैलरी आती है। एंड कॉलेज सब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 4th ईयर में फाइनली सबको एक अच्छी जॉब मिलने वाली है। अकेडमिक से किसी को कोई ज़्यादा मतलब होता नहीं है, बिकॉज दे थिंक कि एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल या फिर जो साइड हसल होती है वो उनको ज़्यादा हेल्प करेगी उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, इसलिए वो वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है एंड वो अंडररेट कर देते हैं कॉलेजेस की स्टडीज़ को। ओके, तो आपका कहना ये कि जो बच्चे पूरे साल पढ़ते नहीं हैं तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि 99 बच्चे ऐसा कर रहे हैं इसलिए 1% बच्चा भी वही कर रहा है। मैं तो कहूँगा कि करिकुलम ही ऐसा हो गया है, करिकुलम को भी मैं ब्लेम नहीं कर सकता। दिस होल सिस्टम इज लाइक दिस। टीचर्स इंटरेस्टेड हैं पढ़ाने में, लेकिन जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो उनका भी इंटरेस्ट लूज होता जा रहा है। स्टूडेंट्स आ रहे हैं सिर्फ अटेंडेंस के लिए, सो दिस होल सिस्टम इज लाइक जस्ट टू go through the process, not to enjoy the process या not to learn from the process. Right. लोग बस उसको I कर would रहे हैं। like to say to the authorities कि please see into it why the students are leaving their interest from the studies and examinations fear. मैम मेरे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम प्रॉब्लम्स और पर्सनल प्रॉब्लम्स जो है वो मतलब मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूँ तो वो इंटरलिंक नहीं करती। एंड एज एन स्टूडेंट मैं थोड़ा पहले से खुद को प्रिपेयर रखती हूँ सो दैट मुझे वो एग्ज़ाम एंजाइटी वाले फेजेस में ना जाना पड़े, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो पर्सनल प्रॉब्लम्स बिल्कुल ही डिफरेंट है फ्रॉम एग्जाम। Okay, तो क्या होती है एक कॉलेज गोइंग गर्ल की पर्सनल प्रॉब्लम? मैम स्पेशली अगर वो बीटेक स्टूडेंट है जहाँ पे मेजॉरिटी बॉयज़ की है, लाइक गर्ल्स बहुत कम है, तो बहुत सारी सिचुएशंस होती है जैसे कि स्कूल में 50-50 रेशो होता था एंड देन कॉलेज में आके आप देखते हो, स्पेशली जैसे मैं डे स्कॉलर हूँ तो साथ में कोई गर्ल नहीं होती या बहुत रेयरली हमें फीमेल फ्रेंडशिप्स वो जो स्कूल में होती थी वो एक्सप्लोर करने मिलती है कॉलेज में भी, इन केस यू आर नॉट हॉस्टलर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं फॉर अ गर्ल। तो आपको नहीं लगता कि गर्ल से ज़्यादा बॉयज़ आर कोऑपरेटिव? कोऑपरेटिव येस आई फील इन समटाइम्स, बट कुछ चीज़ें लाइक गर्ल्स में होती हैं जो बॉयज़ में नहीं होती, बॉयज़ फ्रेंडशिप्स में नहीं होती हैं, सिमिलरली बॉयज़ फ्रेंडशिप्स में होती हैं गर्ल फीमेल फ्रेंडशिप्स में। So this is only the personal problem or the day-to-day problem in youngsters' life, those who are going college? नो मैम, इफ़ वी टॉक मतलब अगर हम बाकी स्टूडेंट्स की भी बात करें तो एग्ज़ाम प्रॉब्लम्स, इवन प्लेसमेंट प्रॉब्लम्स, जिन लोगों की इंटर्नशिप्स नहीं लगी, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस एट्सेट्रा, और सोशल ओवर यूसेज ऑफ सोशल मीडिया। And this is the exam time, तो Yes, ma'am. अब क्या करेंगे? एग्जाम फेयर भी आ गया, उसमें ऐड ऑन हो गया। यस मैम, तो उसको डील करने के लिए अपने आप में चेंजेस लाने पड़ेंगे, लाइक लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकते हैं हम, अकॉर्डिंगली अपना रूटीन्स प्लान कर सकते हैं, या फिर अदर थिंग्स जैसे कि मेडिटेशन एक्सेट्रा भी हम फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? क्या नाम है आपका? Ma'am, I'm Anmol. I'm from the software engineering department. Regarding what? पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ यंगस्टर्स। Ma'am, अभी अगर हम आज की बात करें तो सबसे बड़ी पर्सनल प्रॉब्लम तो ये है कि गर्मी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे मैं कि डे स्कॉलर हूँ और भी बहुत सारे डे स्कॉलर्स हैं, तो मैम उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती हो रही है। पर हाँ, बाकी अगर हम और अपनी पर्सनल साइड को रिलेट करें, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैम मैं ये कहूँगा कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, बीटेक की स्टूडेंट्स, तो मैम वैसे वैसे मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का एक ट्रैप बनता जा रहा है। मैम हम देखते हैं कि ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट्स पे इतनी सारी बकवास चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। तो हम देखना पसंद करते हैं वो बकवास, इसीलिए तो आती नहीं है। मैम, ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। आप देखिए, एक अच्छी चीज जो है, जो नॉर्मली गुड कंटेंट होगा, उसके व्यूज और उसकी लाइकिंग्स कम होंगी, लेकिन जो बकवास होगी वो उसके लाइकिंग्स और व्यूज ज्यादा होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग उसे देखना चाहते हैं, इसी वजह से। मैम ये बात सही नहीं है कि अगर उसकी लाइकिंग ज़्यादा है तो ये वाली बात ज़रूरी है कि ज़्यादा लोग उसे देखना चाहते हैं। हम अगर ये देखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स काम कैसे करते हैं, एल्गोरिदम्स के बेसिस पे वो क्या चाहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ें पॉपुलर हो रही हैं वो ज़्यादा लोगों के पास जाए।
लेकिन ये वाली बात ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ ज़्यादा पॉपुलर हो रही है वही चीज़ सही है। जैसा कि अभी आपने कहा मैम, हम देखते हैं कि ऑनलाइन इन सब वेबसाइट्स पे एक चाय वाला जो बिल गेट्स के पास जाके फेमस हो जाता है और इतने पैसे कमाता है कि वो लंबोर्गिनी के साथ अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ लोगों को डीमोटिवेट करने का भी कारण बन जाता है। ओके हाँ, अब इंजीनियर्स क्या करेंगे? चाय बेचेंगे? चाय बेचे वही। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पर्सनल प्रॉब्लम, जो सोशल मीडिया इज द मेन सोर्स ऑफ दिस नाउअडेज? मैम नॉट रियली अप टू द मार्क। अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स की गलती है, कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूँगा कि जो मेजॉरिटी यूजर्स की प्रेफरेंसेस हैं अपने कंटेंट के बेस कंटेंट को लेकर, वो भी काफ़ी चेंज होती जा रही है, वो भी काफ़ी इवॉल्व होती जा रही है। अब वो अच्छे सेंस में इवॉल्व हो रही है या गलत सेंस में इवॉल्व हो रही है, वो चीज़ एक डिबेट का वो है। ठीक है हाँ।